Hello everyone, welcome back to Physics Nexus by Sajjad Ali. In this lecture, I will explain physical quantities and measurement. Okay, why do we need physical quantities? Okay, how can we measure physical quantities? Okay, and what are the different types of physical quantities? Alright, let's start from a very basic questions. Why do we need physics? Okay, why do we need physics? Alright, we need physics to explain how the universe works. Okay, first, okay, physics is not just like, for example, writing something on a whiteboard. You're writing something on a paper. Okay, physics is all about around us. Okay, alright, physics is used to explain the behavior of nature, how the nature work, how the observable universe work. Okay, physics also explain natural phenomena such as lighting, okay, sound, okay, motion, electricity, magnetism, etc. Okay, physics is one of the fundamental branch of science, okay, in which we study about observable universe. Okay, physics is the study of nature. Okay, physics is the study of nature. Physics is all about study of nature. All right. As we know that physics is one of the fundamental branch of science, okay, in which we study about matter, energy, force, okay, and how energy, matter, force are interact with each other. Okay, all right. Physics is the fundamental branch of science. Okay, fundamental. Why physics is called fundamental branch? Okay, as we know that other branches of science like chemistry, biology, etc. depend on physics. As we know that chemistry is applied physics, biology is applied chemistry. That's why physics is one of the fundamental branch of science. Okay, physics is the fundamental branch of science that deals with okay, energy, matter, force, and their interaction. Alright, physics is one of the fundamental branch of science in which we study about matter, energy, force, and how force, energy, matter are interact with each other. Alright, okay, as we know that physics is based on physical quantities. Okay, what is meant by physical quantities? Okay, physical quantities are such types of quantities which can be measured. Okay, physical quantities are physical quantities. Alright, physical quantities are such type of quantities which can be measured. Yeah, all types of measurable quantities are physical quantities. Okay, and what is meant by non-physical quantities? Non-physical quantities are such types of quantities which can't be measured. Okay, अभी जहन में क्वेश्चन आएगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटीज एवरीवेयर इज फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी. ओके, जस्ट लाइक दैट वॉल्यूम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी. ओके, जस्ट लाइक दैट फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी इज अ फिजिकल क्वांटिटी. ऑलराइट, इट्स अ मेनी मोर. ओके, तो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज आर सच क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड. ओके, such quantities okay that can be measured. Okay, yeah, all the measurable quantities are physical quantities. या any property which can be measured, कोई भी ऐसी property जिसको हम measure कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, वो क्या होगा? physical quantities होगा. like बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी. ओके, स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी. ओके, इसी तरह लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी. ओके, दैट्स व्हाई फिजिक्स इज ऑल अबाउट अराउंड अस. ओके, कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ चल रहा है वो सारा फिजिक्स है. ओके, फिजिक्स इज नॉट जस्ट लाइक राइटिंग समथिंग ऑन अ व्हाइट बोर्ड. ओके, फिजिक्स इज नॉट जस्ट लाइक राइटिंग ऑन सम मैथमेटिकल इक्वेशंस. ओके, फिजिक्स इज ऑल अबाउट, फॉर एग्जांपल, द नेचुरल फिनोमेना व्हिच आर occurring अराउंड अस. ओके, तो दिस आर द सम फिजिकल क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मेनी मोर. ओके,
etc etc. Okay, तो physical quantities. What is mean by non physical quantities? Non physical quantity. Non physical quantities are such properties या such quantities which can't be measured. Okay, such quantities which can't be, which can't be measured. ओके, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम पैमाइश नहीं कर सकते. ओके, डिफाइन तो कर सकते हैं. ओके, लेकिन मेजर नहीं कर सकते. लाइक ओके, हैप्पीनेस फॉर एग्जांपल, हैप्पीनेस. ओके, हैप्पीनेस को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन तो कर सकते हैं लेकिन मेजर नहीं कर सकते. तो दिस इज ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी. जस्ट लाइक दैट काइंडनेस. ओके, काइंडनेस. ओके, जस्ट लाइक दैट फॉर एग्जांपल लव. ओके, just like hate. Okay, just like for example many more. Okay, etc etc. Okay, so how can we differentiate between physical quantities? Physical quantities are such quantities which can be measured. Non-physical quantities are such quantities which can't be measured. Okay, but keep in your mind physics is only based on physical quantities. Okay, physics का क्या है, non-physical quantities के साथ कोई काम नहीं है. Okay, physics is only based on physical quantities. Why? Then the question is why physics is based on physical quantities? Physics is based on physical quantities because physical quantities, for example, are such quantities which can be measured, which can be expressed. Okay, in a, for example, magnitude as well as unit. अगर मेरे पास कोई भी physical quantity है, like for example मेरे पास time है, तो time को हम क्या कर सकते हैं, measure भी कर सकते हैं, define भी कर सकते हैं और express भी कर सकते हैं. Just like time को हम किस तरह express करते हैं, अगर मैं कहूँ कि time is equal to 20 seconds. Okay, time is 20 second. 20 second जो है it is the magnitude. Okay, second is the unit standard. Okay, तो physical quantities में हम क्या करेंगे, physical quantity को measure करेंगे. measure करने के लिए measuring tools use करेंगे. Okay, how can we measure physical quantities? We can measure physical quantities by using different measuring tools या measuring instruments. Okay, like अगर मुझे time को measure करना है तो मैं क्या use करूंगा, stopwatch. Okay, अगर मैंने length को क्या करना है, measure करना है तो मैं क्या करूंगा, meter rule use करूंगा. Okay, just like that अगर मैंने किसी for example फोर्स को मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, न्यूटन मीटर यूज करूंगा. जस्ट लाइक दैट मैंने अगर मास को मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, डिजिटल बैलेंस या वेव बैलेंस यूज करूंगा. ओके, इसी तरह मैनी मोर. तो व्हाट इज मीन बाय मेजरमेंट? मेजरमेंट, ओके, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस. ओके, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग unknown physical quantity with known standard. Standard means unit. Okay, physics में हम क्या करेंगे, यूनिट यूज करेंगे. ओके, और कौन सा यूनिट यूज करेंगे आगे मैं डिस्कस करूंगा. ओके, तो व्हाट इज मीन बाय मेजरमेंट? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ known standard. Okay, standard means with known, standard means unit. Like for example अगर मैंने क्या करना है, length को measure करना है. Okay, what is mean by for example measurement? Measure length by using a meter rule. अगर मैंने क्या करना है, measurement करना है तो पहले से मेरे पास tool होना जरूरी है और इसका standard भी मुझे पता होना जरूरी है कि मैंने meter rule अगर यूज किया है तो यहाँ पे मेरे पास standard या unit क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, क्या है. ओके, और आगे जाके हम यूनिफाइड सिस्टम को भी पढ़ेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट मेजरमेंट. ओके, तो सबसे पहली बात, दिस आर द टू फाउंडेशंस. ओके, ये फिजिक्स के दो फाउंडेशंस होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट. फिजिक्स क्या करेगा, फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा और मेजरमेंट करेगा. तो हमारे पास फिजिक्स में कोई भी अगर क्वांटिटी है, सबसे पहले उसे डिफाइन करना जरूरी है. डिफाइन करने के बाद उसे मेजर करना जरूरी है. मेजर करने के बाद क्या करना, एक्सप्रेस करना जरूरी है. जब एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा और उसका क्या होगा, एक प्रॉपर यूनिट होगा. ओके, ऑलराइट. Okay, all right. What is mean by unit in physics? Okay, unit या standard. Unit is a standard quantity which is used to measure physical quantity. Okay, unit is a standard quantity used to measure physical quantity.
अगर मैंने क्या करना है, लेंथ को मेजर करना है, तो लेंथ को मेजर करने के लिए मुझे स्टैंडर्ड क्या चाहिए, या मीटर चाहिए या सेंटीमीटर चाहिए। ओके, जिस तरह मैंने अगर लेंथ को मेजर करना है तो सबसे पहले मैंने स्टैंडर्ड क्या लेना होगा, या मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर, और अगर बहुत लार्जर डिस्टेंस की बात हो तो या मैं किलोमीटर यूज करूंगा। जस्ट लाइक दैट मैंने अगर टाइम को क्या करना है, मेजर करना है, तो टाइम के लिए भी मैं डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज कर सकता हूं, सेकेंड्स, ओके, मिनट्स, ओके, आवर्स, just like that day, okay, just like that months, etc etc, okay। इसी तरह सारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, यूनिट यूज करेंगे। हमारे पास क्या है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए बहुत सारे यूनिट्स हैं। ओके, लाइक लेंथ के लिए मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, टाइम के लिए सेकेंड्स, मिनट, आवर्स, डे। इसी तरह हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, जिस तरह आपके पास अगर मैथ्स है तो किलोग्राम है, ग्राम से, मिलीग्राम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पाउंड, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें हम क्या करना है, हमने फिजिक्स में एक यूनिफाइड सिस्टम यूज करना है। यूनिफाइड सिस्टम हमारे पास क्या है, एसआई सिस्टम। ओके, व्हाट इज मीन बाय एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, एसआई इज स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट सिस्टम। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक यूनिफाइड सिस्टम है। ओके, इट इज वन ऑफ द यूनिफाइड सिस्टम व्हिच इज एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड according to SI system, for every single physical quantity, okay, there will be a single unit, okay, which is accepted throughout the world। तो SI system हमारे पास क्या है, एक यूनिफाइड सिस्टम है, which is यूनिफाइड सिस्टम। ओके, हमारे पास एक यूनिफाइड सिस्टम है which is accepted globally, okay, which is accepted ग्लोबल। ओके, ये हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के हिसाब से क्या होगा, हर एक सिंगल क्वांटिटी के लिए, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या होगा, फॉर फिजिकल क्वांटिटी, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या होगा, एक ही यूनिट होगा। क्या होगा, वन यूनिट होगा या वन स्टैंडर्ड होगा विच इज एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी देखें, अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं और हमारे पास मेजरमेंट है, तो फिजिकल क्वांटिटीज अभी जहन में आएगा कि क्या क्या बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ओके, तो फिजिक्स में हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज को क्या किया है, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्या किया है, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फिजिकल क्वांटिटीज, सबसे पहला टाइप हमारे पास क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, व्हाट इज मीन बाय बेस, नाम से जाहिर है। ओके, बेस फिजिकल quantities, base physical quantities are also called fundamental physical quantities। okay, in physics there are 7 base physical quantities। हमारे पास फिजिक्स में क्या है, 7 base physical quantities है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो what are base physical quantities? Base physical quantities are fundamental quantities। नंबर 1, ये हमारे पास क्या है, these are fundamental quantities। fundamental क्वांटिटीज होते हैं, पहली बात। ओके, और ये क्या होते हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनको हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को ऑब्टेन करने के लिए ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज यूज करेंगे। ओके, बेस फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हिच फॉर एग्जांपल डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, ये दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करेंगे। दिस आर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं ये। ओके, और फिजिक्स में हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज होंगे इन फिजिक्स। ओके, इन फिजिक्स देयर आर ओनली 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज। बेस फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स में हमारे पास क्या होंगे, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, नंबर 1, टाइम। ओके, टाइम इज ए बेस फिजिकल क्वांटिटी, और टाइम हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, टाइम को हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके, तो ये फंडामेंटल है। ओके, ये फॉर एग्जांपल दिस इज द फंडामेंटल। ओके, फंडामेंटल का मतलब इसके जरिए से हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन टाइम को ऑब्टेन करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो टाइम इज ए बेस फिजिकल क्वांटिटी, और टाइम का जो एसआई यूनिट होगा, टाइम का एसआई यूनिट हमारे पास क्या होगा, एसआई यूनिट, वैसे तो बहुत सारे यूनिट है लेकिन एसआई यूनिट हमारे पास क्या होगा, इसका सेकेंड होगा। ओके, सेकेंड होगा, जिसे हम सिंपल एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, इनके जो यूनिट होते हैं, इनके यूनिट को हम क्या कहेंगे, बेस यूनिट कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे, बेस यूनिट। व्हाट इज मीन बाय बेस यूनिट? बेस यूनिट मींस
बेस यूनिट्स हमारे पास ऐसे यूनिट होंगे जो हमारे पास दूसरे किसी यूनिट पे या स्टैंडर्ड पे डिपेंड नहीं करेंगे, और वो क्या होंगे, बेस फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट होंगे, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास क्या है, लेंथ। तो लेंथ इज आल्सो अ बेस फिजिकल क्वांटिटी, ओके। और लेंथ का जो हमारे पास एसआई यूनिट या बेस जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, मीटर, ओके। और मीटर को हम एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट हमारे पास क्या है, मेस इज आल्सो अ बेस फिजिकल क्वांटिटी, और मेस को हम किस में, एसआई सिस्टम में या बेस यूनिट में किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम, ओके। किलोग्राम इज द बेस यूनिट या एसआई यूनिट ऑफ मेस, ओके, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट नंबर 4, टेम्परेचर, ओके। टेम्परेचर का एसआई यूनिट या बेस यूनिट हमारे पास क्या है, केल्विन, ओके। केल्विन को हम क्या कर सकते हैं, के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 5, जस्ट लाइक दैट हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद क्या है, लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, और लाइट इंटेंसिटी को हम एसआई या बेस यूनिट में किस में मेजर करेंगे, कैंडेला, ओके। कैंडेला या CD से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। जस्ट लाइक दैट नंबर 6, ओके। हमारे पास नंबर 6, नंबर 5 हो, नंबर 6 में क्या होगा, ओके, लेंथ, mass, टाइम, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance is also a base physical quantity, ओके। और इसका क्या होगा, एसआई यूनिट या बेस यूनिट हमारे पास क्या होगा, मोल, ओके, MOLE, मोल से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। नंबर 7 हमारे पास क्या होगा, देखिए सबसे पहले टाइम, लेंथ, mass, टेम्परेचर, ओके, लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट, ओके। इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो अ बेस फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ओके। इलेक्ट्रिक करंट का बेस यूनिट या एसआई यूनिट क्या होगा, एम्पियर, ओके, एम्पियर, ओके। तो these are the 7 base physical quantities which are fundamental quantities, okay, okay, which do not depend on other physical quantity, okay। तो हमने आगे जितने भी फिजिक्स में क्या करने हैं, क्वांटिटीज पढ़ने हैं, जिनको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ओके। तो सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड नाम से जाहिर है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर नॉट फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, वी कैन ऑब्टेन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बाय यूजिंग या बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डिवाइडिंग these 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने इन 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज को एक दूसरे के साथ कभी मल्टीप्लाई कभी डिवाइड करके क्या करना है, अदर क्वांटिटीज हमने ऑब्टेन करने हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर नॉट फंडामेंटल क्वांटिटीज। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, वी कैन ऑब्टेन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बेस फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। बेस फिजिकल क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या करेंगे, जो कि हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, उनको हम या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अदर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगे, जिनको हम डिराइव कहेंगे। और डिराइव हमारे पास क्या होते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज आर सच टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज व्हिच कैन डिपेंड ऑन other physical quantities like base physical quantities, okay, these are not fundamental quantities, okay, ये हमारे पास फंडामेंटल नहीं होते हैं। तो अगर हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्या होगा, यूनिट क्या होगा। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट होगा उसे हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। तो डिराइव्ड यूनिट में हमारे पास क्या होगा, बेस यूनिट नहीं होगी, ओके, क्योंकि डिराइव्ड यूनिट क्या करेगा, बेस यूनिट के यूनिट पे डिपेंड करेगा, ओके। आगे एग्जांपल करते हैं, समझ आ जाएगा, ओके। नंबर 1 बहुत सारे एग्जांपल है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अभी ज़हन में क्वेश्चन आएगा, अगर इस In physics there are 7 base physical quantities. अगर फिजिक्स में 7 base physical quantities हैं, तो how many derived physical quantities are there? Okay, we don't know. Okay, there are for example n number of derived physical quantities. Okay, तो इसका कोई एक स्पेसिफिक नंबर नहीं है. Okay, there are large number of derived physical quantities. All right. तो सबसे पहले हमारे पास बिल्कुल फंडामेंटल, अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड, ओके, तो हाउ कैन यू फाइंड द एरिया? एरिया आपके पास फाइंड करने के लिए अगर मैं व्हाइट बोर्ड का एरिया कहूं, मैं अगर आपको कहता हूं कि फाइंड द एरिया ऑफ द बुक, ओके, फाइंड द एरिया ऑफ दिस रूम, ओके, या फाइंड द एरिया ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड, ओके, तो हाउ कैन यू फाइंड द एरिया? ओके, तो ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि एरिया मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया को हम मेजर कर सकते हैं। नंबर 1 एरिया, okay, area is a derived physical quantity. How can we measure
डिराइव, फॉर एग्जांपल हाउ कैन वी मेजर एरिया, तो इस व्हाइट बोर्ड का अगर मैंने एरिया फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, व्हाइट बोर्ड का फॉर एग्जांपल लेंथ और इसका हाइट या इसका लेंथ या इसका विड्थ में क्या करूंगा, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो एरिया इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन डिपेंड ऑन टू लेंथ, ओके, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ओके, हमारे पास हाइट भी लेंथ है, विड्थ भी लेंथ है, तो मैं सिंपल लिख रहा हूं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो एरिया इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन डिपेंड ऑन बेस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज लेंथ, ओके। अभी देखिए एरिया जो है अगर मेरे पास लेंथ, दो लेंथ पे डिपेंड करेगा, ओके, तो ये क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट जो है हम किस तरह फाइंड करेंगे, यूनिट या डिराइव्ड जो यूनिट होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ का यूनिट हमें पता है क्या है, मीटर, ओके, मल्टीप्लाई बाय मीटर। हमने क्या करना है, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो मीटर एरिया का यूनिट हमारे पास क्या आएगा, बेस एम पावर को ऐड करें तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर इज द डिराइव्ड यूनिट, ओके, मीटर स्क्वायर इज द SI यूनिट फॉर एरिया या इट इज द डिराइव्ड यूनिट फॉर एरिया, ओके, इट इज नॉट बेस यूनिट, ये हमारे पास क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। क्यों डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये दो लेंथ पे डिपेंड करे या 2 मीटर पे डिपेंड करे, नंबर 1 फर्स्ट एग्जांपल। नंबर 2 हमारे पास क्या है, अगर मैं आपको कहता हूं कि आपके पास क्या है, एक बॉक्स है, ओके, एक आइस क्यूब है, ओके, हाउ कैन यू फाइंड आउट द वॉल्यूम, ओके, तो अगर आपने एक आइस है आपके पास, या एक सिंपल क्यूबिक बॉक्स है, तो आपने उसका क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हाउ कैन यू फाइंड द वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम भी आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो ज़हन में आएगा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों है, तो वॉल्यूम का आपको पता है, वॉल्यूम डिपेंड ऑन थ्री लेंथ्स, ओके, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो मैं सबको लेंथ ले रहा हूं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ओके। वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा बेटा, सिंपल है, यूनिट हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ का यूनिट मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर 3 टाइम्स ऑफ मीटर, ओके, तो मीटर मीटर मीटर, तो इसका SI यूनिट मेरे पास क्या आएगा, क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, ओके, क्यूबिक मीटर इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ओके। Why this is derived unit? Because it can depend on 3 times of meter, okay, that's why, okay, so that's why volume is a derived physical quantity and the unit of volume is cubic meter is derived unit, number 2। number 3 इस तरह बहुत सारे एग्जांपल है, नंबर 3 हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 2 एग्जाम्पल के यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन मैंने क्या कहा, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। तो अभी जहन में क्वेश्चन आएगा कि डिवाइड सर क्यों नहीं कर रहा है, ओके, तो अभी मैं डिवाइड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेंसिटी है, मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास एक सॉलिड है, ओके, आपने उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है, व्हाई समथिंग इज फ्लोटिंग, ओके, व्हाई समथिंग इज सिंकिंग, तो कोई भी चीज फ्लोट क्यों करेगा या सिंक क्यों करेगा, तो आपने डेंसिटी अगर फाइंड करना है, ओके, तो डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी, ओके, रो, ओके, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होता है, ओके। तो डेंसिटी में देखिए हमें क्या चाहिए, मास चाहिए, मास इज अ बेस फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो ऑलरेडी हम यहां पे कर चुके हैं। तो इसके लिए हमारे पास यूनिट क्या होगा, देखिए मास का SI यूनिट हमें पता है क्या है, केजी, ओके, किलोग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अभी हम यहां पे फाइंड कर चुके हैं, क्यूबिक मीटर, ओके। तो इसका हमारे पास डिराइव्ड यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब या पर क्यूबिक मीटर, ओके। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, केजी, ओके। देखिए ये डिनोमिनेटर में है, अकॉर्डिंग टू नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ डेंसिटी, ओके। तो ये हमारे पास क्या था, डेंसिटी, तो डेंसिटी इज आल्सो आर derived physical quantity. Why this is derived physical quantity? Because density depend on two quantities, two physical quantity. One is the base physical quantity and second one is the derived physical quantity. लेकिन derived physical quantity के अंदर भी base है ना, length है, okay? तो actual में ये क्या कर रहा है, for example mass पे depend कर रहा है और 3 times of length पे depend कर रहा है, okay? तो this is the derived unit. इसे हम क्या कहेंगे? This is derived, okay, unit. Simple बात है, अगर base physical quantity है तो उसका unit base unit होगा, okay? और अगर आपके पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका यूनिट क्या होगा, आपके पास डिराइव यूनिट होगा। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल है। नंबर 4th एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल इफ ए कार इज मूविंग विद दिस स्पीड, हम स्पीड की बात करते हैं, एक्सीलरेशन की बात करते हैं या फोर्स की बात करते हैं, तो हमारे पास अगर स्पीड की बात करें, ओके, फॉर एग्जांपल स्पीड हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। किसके इक्वल है, डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस इज अ लेंथ, ओके, डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ बिटवीन टू लोकेशन, दो लोकेशन के बीच में क्या है, पाथ लेंथ है, तो डिस्टेंस इज अ लेंथ, तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, ओके, और टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड, ओके। तो स्पीड इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्हाई, because it can depend on two base physical quantity, distance and time, okay, distance is measured in meters, time is measured in seconds, okay। तो हमारे पास स्पीड की जो डिराइव्ड यूनिट है वो क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड। जस्ट लाइक दैट अगर 5th एग्जांपल हम करें, ओके, हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन, ओके,
एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी जो भी आता है स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, या वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ओके, वेलोसिटी और स्पीड में कोई फर्क नहीं है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से जस्ट डायरेक्शन का फर्क है। ओके, वेलोसिटी हम अभी फाइंड कर चुके हैं, वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट सेम होगा, ठीक है, ये वेलोसिटी भी हो सकता है। ओके, स्पीड या वेलोसिटी जो इसका एसआई यूनिट क्या है? सेम है या डिराइव यूनिट सेम है। तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। ओके, हमारे पास क्या है? मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे एक और टाइम है डिवाइडेड बाय सेकेंड। ओके, तो हमारे पास देखिए कुछ इस तरह आएगा, मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय पर सेकेंड। तो हमारे पास एक्सीलरेशन की जो डिराइव यूनिट है वो क्या आएगी? देखिए बेस से में पावर 8 हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन या इट इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल और भी हो सकते हैं। अगर एक दो एग्जांपल और किया जाए तो हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के और एग्जांपल क्या होंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास है फोर्स। ओके, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। ओके, फोर्स हमारे पास क्या होगा? दो फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, एम मेस एंड एक्सीलरेशन। तो मेस का भी हमें पता है, एक्सीलरेशन का भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो फोर्स का हमारे पास जो है डिराइव्ड यूनिट क्या आएगा? फोर्स इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और इसका डिराइव्ड यूनिट क्या आएगा? मेस का है किलोग्राम। ओके, और हमारे पास एक्सीलरेशन क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एसआई सिस्टम में हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? न्यूटन भी कहते हैं। ओके, तो न्यूटन इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूटन हमारे पास क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, एसआई सिस्टम में हमारे पास ये फोर्स का एसआई यूनिट है। ओके, और ये किसके इक्वल है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे हमें पता चला जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास तीन चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं, या लेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं, या हमारे पास मेस पे, ओके, और या टाइम पे। देखिए अभी तक जितने एग्जाम्पल हमने किए हैं ना, कितने एग्जाम्पल किए? 6। इन 6 एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे हमारे पास जो है जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास तीन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहे हैं, लेंथ, मेस, टाइम। इसी तरह जो है हमारे पास 7 फिजिकल उन पे भी डिपेंड करेंगे। ओके, वो आगे हम क्या करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर्स में या आगे लेसन्स में हम कंप्लीट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर एग्जाम्पल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, व्हाई फिजिकल क्वांटिटीज आर इंपॉर्टेंट। ओके, हाउ कैन वी मेजर फिजिकल क्वांटिटीज? ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? ओके, two types of physical quantities, base physical quantities and derived physical quantity. Base physical quantities are only 7 quantities which are fundamental. Okay, there are n number of derived physical quantities. और measurement is the process. Okay, जिसमें हम क्या करेंगे? For example, physical quantities को measure करेंगे by using some standard. Okay, standard means unit. और physics में हम क्या करेंगे? एक unified system use करेंगे which is the, for example, which is a system, okay, which is accepted throughout the world. Okay, globally एक accepted system जिसे हमने क्या कहा? SI system. Okay, SI system के हिसाब से क्या होगा? हर एक सिंगल क्वांटिटी का एक सिंगल यूनिट होगा। ओके, ऑल राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर एग्जांपल टुडे। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, ओके, यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।